دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے چکوال سے۔ شدید بیماری کے باوجود MSTHQ اسپتال چکوال ڈاکٹر آصف نیازی نے اسٹاف نرس کو چھٹی نہ دی۔ چھٹی نہ ملنے کے بعد دوران ڈیوٹی اسٹاف نرس مسرت جبین خان کی بازی ہار گئی۔ DHQ میں اسٹاف نرسز احتجاج کرتے ہوئے ایمرجنسی کے باہر آ گئی، روڈ بلاک کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم قرۃ العین ملک نے موقع پر آ گئی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ MS کو فوری طور پر برطرف کر کے انکوائری کی جائے اور ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ اسٹاف نرسز کے ساتھ پیرامیڈیکل کی تمام تنظیمیں بھی احتجاج میں شامل ہو گئیں۔ اسٹاف نرسز کے احتجاج کے باعث جیلم روڈ کے تمام ٹریفک بلاک۔ احتجاجی مظاہرین کا MS آصف نیازی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ڈسکہ سے غلام مصطفیٰ قادری، تحصیل رپورٹر رائل نیوز کی رپورٹ کے مطابق 20 منٹ کی بارش نے بلدیہ ڈسکہ اور علاقائی خدمت کے دعوے داروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ سیوریج سسٹم کئی دہائیوں سے بالکل ناکام ہو چکا، گلیاں، بازار، سڑکیں پانی پانی، راہگیروں کو گزرنا محال ہو گیا۔ روڈ میں کھڈے ہونے کی وجہ سے گندا پانی کھڑا ہے اور انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گٹروں کا پانی بھی اچھل کر باہر آ رہا ہے۔ اس گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کے دوران لاکھوں وعدے کرنے والے عوامی نمائندوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رواں سال عرس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے کیے جانے والے بہترین انتظامات۔ طارق حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق عرس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر زائرین کے لیے جگہ جگہ پینے کا صاف اور ٹھنڈا پانی کی سبیلیں سمیت دربار شریف میں 5 سے زائد مقامات پر بڑے پنکھے لگا دیے گئے ہیں۔ دیگر انتظامات میں ریسٹ ہاؤس میں مہمانوں کے لیے استقبالیہ کیمپ اور شہریوں کی سہولت کے لیے تمام عملہ 24 گھنٹے موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد کھچی کی ہدایت پر تمام انتظامات کو بہتر سے بہترین بنانے میں ADCR رانا عمر، چیف بلدیہ آفیسر نوید احمد سیلانی اپنی نگرانی میں فیلڈ میں موجود ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہڑپہ سے۔ ہمارے نمائندے رائل نیوز محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 142 محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ کی ہڑپہ شہر میں فاتحہ خوانی اور لواحقین سے اظہار تعزیت، آئندہ الیکشن میں محترمہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ داجل میں ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ نے داجل اور ہرنڈ کے سپلائی علاقوں کا وزٹ کیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مقیم لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل بھی سنے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ زرعی انتظامیہ متوقع سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سیلابی علاقوں میں ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مشینری اور بنیادی ضروریات اور تمام انتظامات مکمل طور پر تیار ہیں۔ متعلقہ افسران کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے افسران سیلابی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جامپور آفتاب اقبال، نائب تحصیلدار محمد عمر خان اور دیگر موجود تھے۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا 781واں عرس مبارک کا 10واں روز جاری۔ عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی فکل کشائی کر دی گئی ہے۔ رسم سجادہ نشین دیوان مسعود چشتی فاروقی نے جید علماء مشائخ اور سجادہ نگان کے ہمراہ ادا کی۔ بہشتی دروازے کے قفل کشائی کے موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فضا نعرہ تکبیر اور حق فرید یا فرید کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں LDA کی جانب سے عوام کے لیے احسن اقدام اٹھایا گیا۔ 1 ونڈو سیل کی ٹائمنگ بڑھا کر 2 شفٹس میں کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کاشف مغل سے۔ جی کاشف، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں LDA آفس لاہور میں، جہاں پر LDA کی جانب سے ایک بہت احسن اقدام اٹھایا گیا ہے۔ 1 ونڈو جہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا، کیونکہ 1 ونڈو کی ٹائمنگ بہت کم تھی۔ ٹائمنگ ہوا کرتی تھی پہلے 9 بجے سے 2 بجے تک۔ اب DG LDA محمد علی رنداوا کی ہدایت پر 1 ونڈو سیل کی
टाइमिंग को तब्दील करके इसको 2 शिफ्टों में तब्दील कर दिया गया है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 4 बजे तक है और दूसरी शिफ्ट 4 बजे से 9 बजे तक है। हम इस सेकंड शिफ्ट में मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो से लोगों का रुझान है वो तकरीबन 90% तो ये इस टाइम सारा ऑफिस खाली है। और बाकी मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वन विंडो सेल असदुल्ला चीमा साहब। तो आइए इनसे ही चल के जानते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर जनरल एलडीए अली रंधावा साहब ने जो इस टाइम सेकंड शिफ्ट का जो आगाज़ किया है, ये एक इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एट वन विंडो सेल अंडर वन रूफ। और पर्पस यही है कि विजन यही है कि जनरल पब्लिक जो है वो आए, शाम तक जो है 9 बजे तक हमारी जो सर्विसेज हैं वो ओपन हैं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करे, अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो वन विंडो पे जमा करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो दिन के टाइम बिज़ी होते हैं और शाम के टाइम वो अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवाना चाहते हैं। ये सर्विसेज जो हैं वो पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हैं। सेकंड शिफ्ट में जो है वो 48 एप्लीकेशन जो हैं वो जमा हो चुकी हैं। हमारे DGLDA जो हैं वो उनकी अनथक कोशिशें हैं, उनकी 24 घंटे की मेहनत है वो, और उनका विजन है कि ये जो सी वन विंडो सेल जो सी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई है, ये आपके ख्याल में ये ताहयात रहना चाहिए कि जैसे हुकूमत आएगी ये चेंज होकर ये ख़त्म हो जानी चाहिए? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला ये सर्विसेज जो हैं ये बहुत अच्छी हैं और अवाम इन शाम तक की शिफ्ट से बहुत मुतमिन है, बहुत खुश है। हमें बड़ा अच्छा और पॉजिटिव फ़ीडबैक मिला है और अवाम चाहती है कि ये जो है वो सिलसिला चलता रहे। असदुल्ला चीमा साहब जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि सेकंड शिफ्ट में भी लोग आराम से आएँ और अपना काम तसल्ली से करवा के घर जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ काशिफ मुगल, रॉयल न्यूज़, लाहौर। काशिफ मोगल की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं खैरपुर से। हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ मंसूर अली खान के मुताबिक खैरपुर के रिहायशी आज़ाद मशहूरी ने मीडिया को बताते हुए कहा है कि मुझे गांव का सरदार और उसका भाई एडवोकेट इंतज़ार मशवरी कुछ कह रहा है कि तुमने मेरी बीवी को प्यार के चक्कर में फंसाकर घर से भगाया है, जैसा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं। मैं 2-3 साल से कराची में रह रहा हूँ, कभी अपने गांव गया ही नहीं, तो इंतज़ार की बीवी को कैसे भगाया। आज़ाद का कहना था कि इंतज़ार मशवरी, निहाल मशहूरी और डॉक्टर शाजिया मशहूरी, हिना मशहूरी मुझे मोतेहार धमकियाँ दे रहे हैं कि तुमने हमारी लड़की को अगवा किया है, जैसा कि उनकी लड़की किसी और जगह से मिली है। इस लड़की को उसका कज़न अली जान छोड़कर आया था। महीना उनके खिलाफ कराची कोर्ट में 22A 22B दर्ज की गई हैं। आला हुकाम से क़यादत में अपील करता हूं कि इस बात का नोटिस ले और मुझे इन बासर से लोगों से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई के इलाके शहर सुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी की MPhil की तलबा को नाजेबा वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके कई माह तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। मरकजी मुलजिम दुबई फरार हो गया तो तलबा की नाजेबा वीडियोस अपने दोस्तों को दे दी। वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके मुलजिम के 2 दोस्त भी कई मरतबा तलबा को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। बादशाह मुलजिमान ने वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी। बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, मलबे तले 3 बच्चियां दबकर जाँ बहक हो गईं। शिकारपुर के नवाही इलाका रुस्तम के करीब गांव मलंग जागरानी में मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से 3 बहनें मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गईं। नाशों को मलबे से निकालकर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक बच्चियों की शिनाख्त आपा जागीरानी, दुआ जागीरानी और सोनहन जागीरदानी के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 5 साल से कम बताई जा रही हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ ईशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने खुलाबट में 5 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का तस्वीरी जायजा लिया। 5 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सेक्टर 4 खुलाबट से बरामद हुआ। हरिपुर पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए। DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद सजाद और DSP सर्कल सदर उमर हयात ने जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में रास्त निगरानी की। जुलूस के रास्तों को बम डिस्पोजल यूनिट और स्नैपर डॉग की मदद से मुकम्मल चेक किया गया।
जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज और एलीट फोर्स के जवान तैनात किए गए। खबर शामिल कर लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ से उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में बारिश के बाद पूरा शहर दरियाए रावी बन गया। मोटरें बंद, गलियां, बाजार, नदी नालों और कचरा कंडी में तब्दील। हर जगह से सीवरेज बंद और गंदा पानी गली बाजारों की जीनत बन गया है, जो कि म्यूनसिपल कमेटी पत्तोकी की नालायकी और काम चोरी का मुंह बोलता सबूत है। एसी पत्तोकी और डीसी कसूर को इल्म होने के बावजूद खामोश कौन करेगा। इसको कहीं कहा जाए कि कोई पुरसाने हाल नहीं। पत्तोकी के शहर बारिश के बाद दरियाए रावी बन गया और गलियां, बाजार, नदी नालों और कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। निगरान हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ, मुतल्लिका हुकाम अपने दफ्तरों तक महदूद हैं, जिसकी वजह से सफाई सुथराई करने वाला अमला फील्ड में गायब रहता है। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान अपनी अयाशियों में मसरूफ नजर आते हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हरिपुर का खुला बट में 5 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने खुला बट में 5 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। 5 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सेक्टर 4 खुला बट से बरामद हुआ। हरिपुर पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद सज्जाद और डीएसपी सर्कल सदर उमर हयात ने जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में बराए रास्त निगरानी की। जुलूस के रास्तों को बम डिस्पोजल यूनिट और स्नैफर डॉग की मदद से मुकम्मल चेक किया गया। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।